Next to that, we have presentation, that is a Sawhorse presentation. Sawhorse formulae or Sawhorse molecular presentation. Okay, now this is very interesting again. We have to look the molecule on a side way now. Side way. That means both carbons you will be observed now. That means observer can see both carbons now. So there are rules are there to apply, and how to will we do this type of a presentation. How one can do this presentation. See the molecule in a side way. First of all, see the molecule in a side way. Second one, observer can see both carbon. Observer can see both carbons. Now look at this one. Now front carbon and back carbon, or nearer carbon or away carbon. So away from the observer, that is back carbon. Away from this one. Next rule is what? The carbon-carbon bond is a diagonally. We have to explain the carbon-carbon bond as a diagonal. Carbon-carbon bond as a diagonal. Diagonal means what? Either we have to explain this one. If I am the observer, I will look at this one. I am the observer, I will see both carbons are same. Diagonal means like this one. Either you can have this one carbon, or either you can have this one carbon. Now which is front carbon now? The lower end of that particular molecule is a front carbon. Lower end is a front carbon. And you know that again, same chemistry. Keep the lines 120 separation. Keep line or bond 120 degree of separation, and they must be diagonal. Okay. And again, very useful for the conformation analysis. Then again, very useful in the reaction mechanism too. To explain the property, example, elimination reactions are there. Now we have explaining that scene orientation, anti-orientation. Okay, all these are very useful. By using that only, Sawhorse can detect all these things now. So see the molecule in a side way. Observer can see both the carbons. Away from the observer, it's a back carbon. And all carbon-carbon bonds are one. They are diagonal. Lower end is a front carbon. And you have to keep the lines or bonds at 120 separation. Very useful for the conformation analysis, as well as for reaction mechanism, to explain the spatial orientation between the molecules. So I will show the example of two molecules. Again, in this case, eclipsed and staggered are there. First, we have to draw a diagonal line now. Example, this is my diagonal line. Look at this one. This is a one carbon. Lower end of the carbon is a front carbon. Lower end of the diagonal line is a front carbon, and the back carbon is nothing but which is away from the observer. Look at this. I will draw three lines on each carbon. Example, this is my first line, second line, third line, and each line from that particular carbon or on the carbon should be separated by 120. The second one, same orientation is there now. I will draw like this. Okay, so this is called the one conformation of the Sawhorse. The second one I will draw here. This is my diagonal line. This is diagonal line. Now you can just invert that first three substituents just like a Y shape, and here keep the second Y as a constant. Now see the relationship between the substituents which are present here. So here the relationship between this and this, it must be theta is equal to 0, because they just one back to other. If we see the relationship between this to this one, theta is equal to 0. If you see the relationship between this and this one, theta is equal to 0. If you see the relationship between this and this one, theta is equal to 0. And whenever theta is equal to 0, so such orientation is called as a eclipsed one. Okay.
Now what is the Gauss and what is the staggered here now? What is the Gauss and what is the staggered now? So I will take the same example. I will take the first example here now. Okay. That means the first substituents are in this fashion, that is inverted Y, and the next one is what the this one now. Okay, I will take the second molecule, second presentation. This is eclipsed. Okay. Now what about the staggered now? Staggered or Gauss? Take the diagonal line here. Okay, and inverted Y's are there now. What is inverted Y now? So example, this is my two substituents are this fashion. So these two substituents are like this one. This is called the staggered. Now look at the orientation between these two now, or relationship between this now. Suppose this one and this one, these green dots are relationship as a opposite to each other. That's why the theta is equal to 180. Okay, but if you see the relationship between these two now, example is here. This is theta is equal to 60. If I take this one and this one also, theta is equal to 60. If you take these two, theta is equal to 60. But if I take this one and this one, they are opposite. Okay, they are opposite. This one and this one, they are opposite. So likewise, if theta is equal to 60, then it is called as a Gauss, and this is called a staggered. Okay. Now take this very simple molecule. Example, I will take the molecule in example. The molecule is there in Fischer form. So look at this my molecule, and the substituents are okay. Same. Take this example: hydrogen, 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 and give the numbers for our simplicity again: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now the first molecule is the Fischer now. Fischer is going to convert into the eclipse now. That means it is an eclipse conformation. So I will make a diagonal line here. This is my diagonal line. The lower end of the carbon is a front carbon, right? And we have to first make the eclipse now. What is eclipse now? Your both Y's are parallel to each other. This is called eclipse. Give the numbers to that particular hydrogen. What are the numbers now? Example, this is my on this carbon. How many substituents are there? H1, H2, and H6. Correct? H1, H2, and this is H6. And on this carbon, H5, H3, H4. This is H3, then H5, and this is one H6. Now why I give the number to that one? So at the second hydrogen, so just second hydrogen below to second hydrogen. So second के नीचे आपका third दिया हुआ है. That means your second, this one and this one, they should be theta is equal to 0 degree now. एक दूसरे के पीछे है बराबर. H5, H6 देखो, they are also same. और H1, H4 देखो, they are also the same now. So सबसे पहले मैं क्या करूँ, किसी कार्बन को फिक्स करना है मुझे, and just I will rotate that one y at the 60 degree. क्या हो जाएगा जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 60 से, तो कौन बदलेगा, कहाँ पे जाएगा? H1 take the position of and these are my substituents. Example, ये तो मेरा फिक्स रहेगा, ये मैं बदल नहीं रहा सर में. And these are H5, H4, and this is H3. Now look at that molecule now where I'm going to change now. Look at the carbon now here. So अब इसको हमने कितने से एंगल यूज किया है? 60 से. तो 60 से जब करते हैं अपन, तो थोड़ा बहुत एंगल आपका बदलेगा किसके बीच में? सो एग्जांपल ले लो कि H1 और H6 इनकी पोजीशन आपकी बदल जाएगी और 2 भी आपका बदल जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे? H5 के बीच में. हाँ, इसका मतलब अब थोड़ा सा ओके. सो आई विल मेक दिस स्ट्रक्चर. इसको मैं ऐसे बनाऊंगा वापस से. और ये जो है क्या क्या आ गया यहाँ पे? एग्जांपल ले लो H6 आ गया यहाँ पे. ये क्या था आपका? H1. तो ये 60 से भी कर दिया तो स्टैगर्ड के जैसा दिखता है. पहला y और दूसरा उल्टा y हो गया. वापस से मुझे क्या करना है इसमें? सो आई विल डू द रोटेशन ऑफ 60 नाउ. सो आप क्या हो जाएगा H6 आपका. और फिर उसके बाद जगह पे. So this is my the diagonal line, and here so these are the substituents. Example here, this is H5, this is H4, this is H3. ये था. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा इसको. I will make this one. Correct? This is H2, then H1, और ये क्या रहा? H2 उधर गया, फिर H1 इधर आया, और इधर ये H6 हो.
फिर और एक बार रोटेट करना है इसको. So then H1 will take the position of H2, 60. तो आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं इसको. ओके, ये हो गया. और यहाँ पे आने के बाद अब आपको चेंज करने हैं इसको. ये किस फॉर्म में जाएगा फिर आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, और इनकी पोजीशन बदल जाएगी. सो ये जाएगा आपका H6, ये जाएगा आपका H2, और ये जाएगा आपका H1. कितने हो गए? 1 2 3. और ऐसे 3 हो जाएंगे आपके, और आपको फाइनली जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारा पहला था. ये कितनी बार हो रहा है आपका रोटेशन ये? ओके, सो अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपको वो मिलेगा. अब इसमें एग्जांपल जो है अपन टार्टरिक एसिड का लेकर देखते हैं कि टार्टरिक एसिड का जो एग्जांपल है, बेसिकली इट इज अ 2 chiral center containing मॉलिक्यूल, और जिसमें आपको ये है आपका एक सिंपल लाइन स्ट्रक्चर वाला दिया है आपको इसमें. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ फिशर में. सो फिशर मीन्स ये हो गया फिशर इसका जो मेजो बनेगा, जो कि इक्लिप्स रहेगा वो वाला. COH COH HH and this is also COH. Now we have to first convert into the Sawhorse. Now Sawhorse में पहले डायगोनल लाइन निकालनी है आपको. ओके, एंड बोथ द सब्सटेंस शुड बी ऑन दिस ओरिएंटेशन. एग्जांपल, ये रहा पहला वाला और ये रहा दूसरे वाला. क्या क्या रहेगा इसके ऊपर? सो हियर COH के जस्ट पीछे COH है, यहाँ पे OH के बाद OH आ गया, और ये जो है आपके वो HH. तो सबसे पहले इसको, अगर मैंने इस कंपाउंड को डायरेक्ट 180 से रोटेट अगर करता हूँ या, तो कितना हो जाएगा? रोटेशन ऑफ 180. हाँ, COH आपके एक्जैक्टली क्या होनी चाहिए? अपोजिट हो जाएंगे. yes. मतलब आपको स्टैगर्ड निकालना है. तो आप डायरेक्टली 60-60 ना खेलते हुए डायरेक्टली 120 या 60, ये क्या हो जाएगा? कम एक्जैक्टली ये स्टैगर्ड हो जाएगा. स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि पहला जो Y है उसका ओरिएंटेशन देखो, ठीक है, और दूसरा जो Y बनेगा वो ऐसे बनेगा. और आपके सब्स्टिट्यूएंट जो क्या थे आपके, यहाँ पे क्या है आपका COOH है, तो ये आ गया मेरा COH यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मेरा H है तो मेरा यहाँ पे H आ गया. ये OH है तो ये OH यहाँ पे आ गया. तो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैंने 3 बार रोटेशन किया हुआ 60 से. तो कैसे हुआ? देखो, पहला H जो है 60 से रोटेट किया तो यहाँ पे आया, फिर एक बार रोटेट किया तो यहाँ पर आ गया, और फिर एक बार रोटेट किया तो आप यहाँ पे ला सकते हो उसको. ऐसा घुमा रहे हो उसको आप उसको. सो यू कैन मेक दिस चेंजेस नाउ हियर. ओके, सिमिलरली क्या करना है आपको, नेक्स्ट आप और भी कर सकते हैं. जैसा किसी ने इसको 120 से किया है या पहले 60 से किया है, तो 60 से किया तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन विल टेक द पोजीशन हियर नाउ. फिर उसके बाद आप 120 ला सकते हैं इसको. 120 लाना मतलब क्या होता है, अब मैं इसका 120 बनाऊंगा. कैसे आता है 120? हाउ दिस 120 विल बी देयर नाउ? 120 देखो ये है मैं निकालता हूँ इसका. ये तो वैसे ही रहेगा आपका. कौन कौन प्रेजेंट है इसके ऊपर? हाइड्रोजन है, दिस वन. चलिए, अब आपको क्या करना है, इसको 120 करना है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो इट इज ऑल्सो गेट इन्वर्टेड नाउ. और इन्वर्टेड का मतलब होता है ये आपने बनाना है इसको ये वाला. सो व्हाट हैपन टू दैट पोजीशन नाउ? सिक्सटी और 60 COH, देन दिस इज व्हाट आई थिंक दिस इज H, और ये OH. क्या ये दोनों सेम है? 180 से मिलने वाला और 120 से मिलने वाला. तो आपको चारों में भी इंटर कन्वर्ट करते आना चाहिए. एग्जांपल, सपोज किसी ने सिंपल से आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया CH3 CHOH, ये वाला मॉलिक्यूल दिया आपको COOH, एंड दिस इज व्हाट COH, वही मॉलिक्यूल टार्टरिक एसिड. तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करते आना चाहिए? पहले वेज में. वेज कैसे रहेगा इसका? वेज के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे. एक तो दोनों OH फ्रंट में, समझ में आ रहा है क्या ये? एक क्या बनेगा इसका, एक फ्रंट, फिर जिसको फ्रंट किया उसको बैक कर सकते हैं आप, यानी कि इसके जैसा दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको. और एक पॉसिबिलिटी ये है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर निकाल सकते. क्योंकि क्या होता है स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि जितने कायरल सेंटर होते हैं उसके हिसाब से आपको आइसोमर्स मिलते हैं, और उसका जो फार्मूला है वो 2 to the power n है. द नंबर n मींस नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर. अगर आपके पास 2 कायरल सेंटर है तो इसका मतलब 2 to the power 2. कितना आएगा वो 2 to the power 2 मतलब
2 to the power 2 मतलब आपको 4, इसलिए मैंने ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ये कुछ मैंने मेरे हिसाब से नहीं निकाले, ये ऑलरेडी क्या है 4 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब इसके आप जो है वो बना सकते हैं फिशर, 4 फिशर बनाने हैं आपको। तो 4 फिशर कैसे रहेंगे? 4 फिशर का मतलब ये होता है, पहला फिशर ये रहेगा, दूसरा फिशर यहाँ पे, तीसरा फिशर यहाँ पे, और चौथा फिशर आपका यहाँ पे। तो इसमें से पहले जो 2 है आपके, वो आप मीजो बना सकते हैं उनको, जो जो लिखे ना हमने कि जो दोनों फ्रंट है या दोनों बैक है, वो ये वाले। ठीक है, ये हो गए दोनों मीजो फॉर्म, इनमें से कोई भी एक ही लिखा जाता है। उसके बाद का जो कौन है वो, इन दोनों को बोला जाता है एक्टिव फॉर्म। इनको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव फॉर्म, जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोज भी नहीं है। तो इनमें से ऐसे आपको 4 कंपाउंड्स मिलेंगे, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 एंड कंपाउंड 4। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4। क्या क्या बताना पड़ेगा आपको? किसका किसका रिलेशनशिप? 1 और 2 का, 1 और 3 का, और 1 और 4 का। उसी तरह सेम 2 और 3 का, 2 और 4 का, फिर 3 और 4 का। तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या होगा। आप आरएस भी निकाल सकते हैं इसका, तो आरएस अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अपन आरएस से इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपसे। तो देखो हमने कितने कॉम्बिनेशन निकाले? 6 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन इनैंशियोमर्स के हैं और बाकी के 4 कॉम्बिनेशन डायस्टेरियोमर्स के। इसका मतलब ये होता है जिस दिन कंपाउंड में 2 chiral सेंटर होते हैं उसके 4 कंपाउंड बनेंगे। इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 chiral सेंटर देन 4 आइसोमर्स आर ऑब्टेन। आउट ऑफ दैट 4 आइसोमर्स 4 आर डायस्टेरियोमर एंड 2 आर इनैंशियोमर, यानी कि डायस्टेरियोमेरिक पेयर जो है हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू द इनैंशियोमेरिक पेयर। ठीक है, कुछ नेक्स्ट टू दैट मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको उन कंपाउंड्स का, आपको वो निकालना है, न्यूमन करके देखना है इस कंपाउंड का। तो एग्जांपल दे देते हैं अपन कि पहले कार्बन पे आ, ये वाला मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें भी 2 chiral सेंटर है आपके पास। तो आप इसको फिशर बनाओ पहले। फिशर कैसे बनाना है इसका? इसका फिशर आपका ऐसे बनेगा, पीएच पीएच आप दोनों सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे ले लो, इधर सीएल लगा दो, इधर ओएच लगा दो, इधर एच लगा दो, इधर एच लगा दो, हो गया आपका फिशर। फिशर जैसे खत्म हो गया इसको न्यूमन में डालो। न्यूमन मतलब फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन के फिर 3 लगा दो इधर ऐसे। तो फ्रंट कार्बन पे 3 कौन कौन है? एक जैसे सीएल है, जैसे पीएच है, और जैसे आपका एच है, ये हो गया फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन निकालो। बैक कार्बन कैसे रहेगा? सीएल के नीचे कौन है? ओएच, पीएच के नीचे पीएच, और एच के नीचे एच। करो इसको रोटेट कितने से? इसको करो रोटेट डायरेक्ट 60 से किया तो क्या हो जाएगा? अब हमको ग्रीन वाले बदलने हैं, 60 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब दोनों के बीच बीच में आ जाएंगे, इसके बाद जाएगा। और फिर आपने इसको कितने से किया? 60 से किया, मतलब अब मैं डायरेक्ट इसको 180 से करता हूँ, क्या हो जाएगा 180 से करने से? दिस इज माई सीएल, दिस इज माई पीएच, दिस इज माई एच। और ये रिमेनिंग कहाँ पे चले गए? यहाँ पे चला गया कौन? पीएच, यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे आ गया OH। तो ये हो गया आपका स्टैगर। फिर इसको मैं 60 डालूंगा, 60 से क्या हो जाएगा? हाँ, OH एच के पास चल जाएगा। ठीक है, अब और 120 से किया तो, सॉरी 180 से किया तो, और पहला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर निकालो और उसको 60-60 से चलते रहो। पहला स्ट्रक्चर निकालो 60-60 से उसको लेके चलते रहो। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इवन आप इसी कंपाउंड को ये वाला भी निकाल सकते हैं। कौन से वाला? मेक अ डायगोनल लाइन हियर, दैट इज कॉल्ड द सॉहर्स। इसमें ऐसे 3 आपको ये निकालना है। पोजीशन में देता हूँ लिख के आपको, दिस इज माई एच, दिस इज माई एच, एच के पीछे एच, सीएल के पीछे कौन आ गया? OH, और ये कौन है आपका? पीएच पीएच। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, 60-60-60 से लेके चलो, पीछे वाला कार्बन जनरली रोटेट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन।